جوشوں میں، سانسوں کی گرمی میں، دلوں کی دھڑکنوں میں آتی ہے بس ایک صدا، سنی مسلم، سنی مسلم۔ ٹرو اسلام ایپ کو پلے اسٹور سے ضرور ڈاؤن لوڈ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ راشد جٹاری صاحب جی السلام علیکم۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔ یہی طریقہ ان کو بھی سکھا دیجیے، یہ بالکل جواب ہی نہیں دیتے سلام کا۔ نہیں، پہلے آپ کا عقیدہ جب واضح ہو جائے گا، سمجھ رہے ہیں نا، اگر ایسا مجھے معلوم ہوگا کہ آپ عقائد کے معاملے میں ہم شبیہ ہیں، سمجھ رہے ہیں، تو میں آپ کے سلام کا جواب دے دوں گا، لیکن ابھی نہیں، عدنان صاحب اتنا بھی نہیں بولے، جس طرح آپ گھما کے جواب دیے نا کہ جو حق ہو رہے سلامتی اسی پر ہو۔ تو پہلے آپ کے حق ہونے کا مجھے تو علم ہو جائے کہ آپ حق پہ ہیں۔ تو اس کی کیا دلیل ہے کہ کون حق پر کیا پیمانہ کیا ہے؟ نہیں، آپ سے جو انہوں نے بات کرائی اور انہوں نے بتایا عدنان بھائی نے کہ بھائی آپ جو ہے غیر اللہ سے سنیے، پہلے میری سلام کرنا سنت ہے لیکن جواب دینا واجب ہے۔ بالکل سلام کرنا سنت ہے اور جواب دینا واجب ہے، لیکن مسلمانوں کے سلام کا جواب دینا واجب ہے نا۔ پہلے یہ تو معلوم ہو جائے کہ آپ مسلمان ہیں راشد جٹاری صاحب۔ جب یہ معلوم ہو، رک جائے پیمانہ کیا ہے؟ پیمانہ کیا؟ اس کا پیمانہ یہ ہے کہ انہوں نے جو ہم نے آج تک کبھی آپ سے بات نہیں کی ہے، جو انہوں نے مجھ کو بات کرنے کے لیے آپ سے مدعو کیا ہے، سمجھ رہے ہیں عدنان بھائی نے، تو انہوں نے یہ کہا کہ وہ غیر اللہ کے موضوع پہ بات کرنا چاہتے ہیں اور ان کا عقیدہ دیوبند کا ہے، وہ دیوبند جماعت کو، تو دیوبند جماعت جو ہے ہمارے نزدیک مسلمان نہیں ہے، بات سمجھ رہے ہیں۔ تو اب اگر آپ دیوبندیت کو آپ فالو نہیں کرتے ہیں، دیوبندیت آپ کے نزدیک وہی ہے جو ہمارے نزدیک ہیں، تو آپ اس کا اعلان کر دیجئے اور آپ یہ کہہ دیجئے کہ ہمارا عقیدہ وہی ہے جو اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ اہل حدیث کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اہل حدیث بھی کافر ہیں۔ 72 کلہم فی النار الا واحدہ۔ سلفی میں نے کہا نا، ایک بریلوی، سنی بریلوی کو چھوڑ کر کے باقی سب 72 کافر ہیں ہمارے نزدیک۔ جی، اب انہوں نے جو مدعو کیا ہے مجھ سے بات کرنے کے لیے، آپ کو بتایا ہے کہ آپ غیر اللہ کے موضوع پہ بات کرنے کے لیے تیار ہیں، تو کیا انہوں نے صحیح؟ ابھی تو اسی بات سے طے کرنے کے لیے بولے تھے کہ آپ اپنے عالم سے بات کریں۔ ہاں تو ٹھیک ہے، تو میں عالم ہوں، آپ غیر اللہ کے موضوع پہ بات کریں گے نا راشد جٹاری صاحب؟ میں تو وہی تو ٹائم فکس کرنے کے بارے میں بات ہوئی ہے، ابھی تو کچھ دیر پہلے ٹائم فکس کرنے کے بارے میں بات ہوئی۔ آپ کے عالم کے مطلب بولے تو آپ عالم نہیں ہیں؟ نہیں، میں عالم نہیں ہوں۔ تو آپ کے عالم کون ہیں؟ کیا نام ہے ان کا؟ وہ مفتی ہیں۔ کیا نام ہے ان کا؟ تقی الدین صاحب ہیں۔ تقی الدین صاحب۔ کہاں سے ان کا تعلق ہے؟ میں پہلے میں اپنے بارے میں بتا دیتا ہوں۔ میرا نام محمد طفیل رضا شمسی، سنی حنفی بریلوی، غازی پور سے ہوں۔ سنیے، اب جو مفتی، جو دیوبند جماعت کے مفتی ہیں، وہ کہاں سے تعلق رکھتے ہیں؟ وہ ادھر بہار کی ہیں، پوروی بہار، بنگال سائڈ۔ اچھا، بہار بنگال سائڈ کے ہیں۔ تو راشد جٹاری صاحب ایک بات میں آپ کو بتا دوں، ان کی فراغت حاصل ہے جامعہ رحمانی منگیر۔ اچھا، مطلب دیوبند جماعت سے ہے نا؟ جی۔ ایک چیز یاد رکھیے گا راشد جٹاری صاحب، غیر اللہ کے موضوع پہ ہم جو بات کریں گے، سمجھ رہے ہیں، اس کی شرائط پہلے میں آپ کو بتا دوں، آپ اپنی شرائط بھی بتا دیجئے گا، لیکن میں پہلے بتا دوں۔ موضوع یہ ہے حضرت، پہلے یہ ہے موضوع تو غیر اللہ، پہلے تو موضوع طے کریں گے نا، پہلے موضوع تو طے ہو گیا کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا کیسا ہے، یہ موضوع ہو گیا ہے۔ یہ پورا موضوع نہیں ہوا، یاد آ رہا مجھے۔ اچھا چلیے، آپ پورا بتا دیجئے کہ ما فوق الاسباب، غیر اللہ سے مدد مانگنا جائز ہے یا نہیں، اس میں آپ کو اپنا موقف رکھنا ہے اور یہ ہمارے عالم اپنا موقف رکھیں گے۔ لیکن ایک چیز رہے گا، ایک چیز رہے گی، یاد رکھیے گا کہ وہ جماعت دیوبند کے ہیں تو ان کے لیے ان کے اکابر کی باتیں حجت ہوں گی، میرے لیے میرے اکابر کی باتیں حجت ہوں گی۔ کامن ٹرم سے آ رہی ہے، جو جس کو آپ بھی مانتے ہیں اور جن کو وہ بھی مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں۔ نہیں تو اگر سنیے، میں اس شرط کے لیے جب تیار ہوں، پہلے بات آپ سنیے، اس کو ایسے مطلب
اس سے مطلب بھاگنا اور چھٹکارا نہیں ہو پائے گا. یا تو وہ اگر ہاں کامن ٹرمز میں جو آپ کہہ رہے ہیں نا راشد جٹاری صاحب, تو اس میں ایک بات ہوگی, اگر میں یہ اس چیز کا دعویٰ میں کروں کہ کامن ٹرمز پہ بات کریں گے تو پہلے مجھے اپنے آپ کو یہ کہنا پڑے گا کہ میں بریلوی نہیں ہوں. بات سمجھ رہے ہیں؟ اور میں بریلویت کو لات مار, پہلے رک جائیے بات پہلے سن لیجئے, میں بریلویت کو لات مارتا ہوں اور پھر میں اس پہ بات کرتا ہوں. اگر یہ میں کہوں گا کامن ٹرمز کے لیے, تو جو کامن ٹرمز پہ بات کریں گے ان کو پہلے جماعت دیوبند کو لات مارنا ہوگی. ٹھیک ہے کہ بھائی میرا کوئی تعلق نہیں ہے جماعت دیوبند سے, میں جماعت دیوبند کو ویسا ہی سمجھتا ہوں. سمجھ رہے ہیں؟ جیسے کہ بھائی جو اگر اس کے تحت قرآن و حدیث کی روشنی میں اگر ان کے اوپر بھی کفر کا فتویٰ لگے گا تو ان کو بھی ہم کافر کہیں گے. اگر اس چیز کیا رکھنا چاہتے ہیں یہ بولیے نا, میں نے تو بتا دیا, تو یہ ماخذ قرآن سے حدیث سے, تو حدیث سے ٹھیک ہے, تو قرآن نہیں, دلائل قرآن حدیث کے دیے جائیں گے, یہ تو صحیح ہے, لیکن ان کے لیے ان کے اکابر کی بات بھی حجت ہوگی, میرے لیے میرے اکابر کی بات بھی حجت ہوگی قرآن حدیث کے علاوہ. یہ شرائط کا وہ جانے جی سنیں نا میری بات, یہ ماخذ اگر قرآن و حدیث سننا اور اجماع اور قیاس, اجماع کسے کہتے ہیں ذرا سب مجھے بتا دے تو میں سمجھوں ذرا سا. جس میں دیکھیے میں پہلے بول رہا ہوں میں طالب علم ہوں, یہ آپ طالب علم ہے اسی لیے میں بتا رہا ہوں نا, آپ مناظرہ کرانا چاہتے ہیں کہ اپنے کسی عالم سے بات کرانا چاہتے ہیں, تو بھائی میں بریلوی ہو کر کے پہلے میری بات سن لیں, پہلے میری بات, راشد جٹاری صاحب پہلے بات سنا بھی کریں. آپ مناظرہ بھی کرانا چاہتے ہیں اور میں بریلوی عالم ہو کر کے اس چیز کو میں مان رہا ہوں کہ میرے لیے میرے اکابر علماء کی بات حجت ہوگی, تو یہ چیز آپ کو ماننے میں کیوں آ رہی ہے کہ آپ کے اکابر علماء کی بھی بات حجت ہوگی؟ کیا آپ کو ڈر لگتا ہے کہ ہم اگر اپنے اکابر کی بات اپنے اوپر حجت مانیں گے تو میں پھنس جاؤں گا؟ آپ کیا ایسا سوچتے ہیں کیا؟ وہ پھر آپ نہیں مانیں گے نا, ہمارے اکابر کی حجت کو آپ مانیں گے نہیں, آپ کے لیے آپ کی اکابر کی بات حجت ہوگی, میرے لیے میرے اکابر کی بات حجت ہوگی. ایسا نہیں کہ میرے اکابر کی بات میں آپ پہ حجت کر دوں یا آپ اپنے اکابر کی بات میرے لیے حجت کر دیں, ایسا نہیں میں بولا ہوں. آپ کے لیے آپ کے اکابر کی بات, آپ کے گھر کی کتاب کا جب میں حوالہ دوں گا تو وہ آپ کے لیے حجت ہوگی. آپ جب میرے گھر کی کتاب کا حوالہ دیں گے, معتبر نہیں ہے نا, وہ معتبر نہیں ہے نا آپ کے لیے, تو معتبر نہیں ہے تو پھر یہ اعلان کر دیجئے کہ پھر میں جماعت دیوبند سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے, بالکل وہ کافر مسلک ہے. وہ آپ کے لیے معتبر نہیں ہے نا, آپ ان کے دلیل کو اپنا بیس کیوں بنائیں گے نہیں پار کرنے کے لیے؟ ارے بھائی میں اپنے لیے کہاں ان کو دلیل مان رہا ہوں, آپ کے لیے. بھائی دیکھیے ایسا ہے, ہلو, آپ کے لیے وہ آپ جو آپ کے علماء ہیں وہ آپ کے لیے حجت ہوگی. قرآن و بھائی میں نے کیا کہا, میں نے قرآن و حدیث کا انکار کیا؟ میں نے کہا قرآن و حدیث بھی رہے گا اور کیا نام ہے اکابر علماء کی بات بھی حجت ہوگی مناظرے کا, چونکہ یہ اصول بھی ہے, آپ کو معلوم بھی ہونا چاہیے. نہیں دیکھیے یہ اصول اگر دیوبند جماعت کو فالو کریں گے, راشد جٹاری صاحب جب جماعت دیوبند کو فالو کریں گے تو آپ کو اس چیز کو ماننا پڑے گا کہ آپ کے لیے جو ہے آپ کے اکابر علماء کی بات حجت ہوگی اور میرے لیے میرے اکابر علماء کی بات حجت ہوگی. قرآن و حدیث کے علاوہ آپ سنیے, آپ کا مبارک نام اس میں گرامی محمد طفیل رضا شمسی. رضا صاحب میری بات سنیں جی. دیکھیے آئینہ جب ہمارے پاس ہے تو کنویں میں جھانکنے کی کیا ضرورت ہے؟ بالکل. اب ایک تو اسی پہ میں بات کر رہا ہوں, اگر بالفرض مان لیجئے کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں اگر غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ثابت ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے, ایک میں بات کہہ رہا ہوں, ٹھیک ہے, تو اب تو وہ کسے باشد یا تو دیوبندی عالم ہو یا تو بریلوی عالم ہو, چاہے وہ شیعہ ہو, وہ تو مشرک کا فتویٰ سب پہ برابر لگے گا. جی اچھا حضرت, پہلے میں جتنا پوچھ رہا ہوں آپ بتائیے نا جی. ہاں کیا پوچھ رہے ہیں آپ؟ میں نے یہ پوچھا کہ اگر قرآن و حدیث کی روشنی میں اگر آپ کے عالم نے یہ ثابت کیا کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے, ٹھیک ہے, اور یہی بات آپ کے گھر کی کتابوں سے ثابت ہو گئی, ٹھیک ہے, تو آپ اپنے علماء کو مشرک مان لیں گے نا؟ میں عقیدہ کو اگر قرآن و حدیث کے خلاف چاہے ہمارے ہو آپ کے نہیں, پہلے اس چیز کا اعتراف کیجئے. میں جو ثابت کروں گا بھائی غیر اللہ سے مدد مانگنا بہتر ہے کہ نہیں, وہ تو بات کی چیز ہے, وہ تو میں ثابت کروں گا قرآن سے, حدیث سے, اجماع سے, قیاس سے اور اپنے اکابر کی بھی کتاب سے. میں اپنے لیے اس کو یہ کروں گا, وہ تو الگ بات ہے. 4 چیز تک رہنے دیجیے تب. ہاں تو ٹھیک ہے, 4 چیز. ہاں سنیے, قرآن حدیث اجماع قیاس, ٹھیک ہے, اجماع قیاس تک اگر یہ بات اگر مطلب غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ثابت ہوگا اگر بالفرض,
वो तो होना नहीं है, मैं जानता हूं, वो तो जब बात आएगी तो उसमें बहुत बात होगी इंशाअल्लाह रहमान। मैं ये कह रहा हूं कि अगर कुरान हदीस इजमा कयास से अगर ये बात साबित हो जाए कि गैरुल्लाह से मदद मांगना शिर्क है, तो अब वो किसी भी मसलक का आलिम होगा, अगर उसके यहाँ ये बात पाई जाएगी तो मुशरिक होगा ना। इस चीज का एतराफ कीजिए, फिर बात हो। हाँ जी, नहीं, गौर करें पहले मैं जो कहना चाहता हूं, क्या क्या मैंने कहा पहले आप बताइए, उसको रिपीट कीजिए ताकि वो आप, ये बात रिकॉर्ड हो रही है, वो बात आपकी महफूज हो जाए। हाँ, कुरान हदीस इजमा और कयास, इसके बेस पर जो बात गलत साबित होगी तो वो सारे मतलब के लिए गलत साबित होगी, है ना। तो ऐसा है ना, आप इस चीज को अदनान भाई, जी 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 अदनान भाई, ये बात आप टेप कर रहे हैं ना? जी जी बिल्कुल रिकॉर्ड कर रहे हाँ हैं। बिल्कुल रिकॉर्ड कर रहे हैं। टाइमिंग इनके आलिम से रखवा लीजिए, ठीक है, और फिर इस पे बात हो जाएगी, ठीक है। तो हजरत इन्होंने अभी अभी हमसे थोड़ी देर पहले एक झूठ बोला था क्या? कि एक इनके मौलाना साहब आएंगे और आपके नहीं बोला है कि मुफ्ती साहब आएंगे। हाँ तो मौलाना मुफ्ती, देखिए आप मुफ्ती को ला लीजिए, तो झूठ क्या। मैं परेशान ना होइए, आप मुफ्ती नहीं, आप शेखुल हदीस को लेकर के, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और तो मैं ये भी कहता हूँ, बुरा मत मानिएगा, मुबालगा आराई नहीं है, हक को बातिल नहीं साबित कर राशिद जट्टारी साहब, उसमें मुबालगा आराई नहीं है। मैं तो ये भी कहता हूँ कि अगर हो सके तो अशरफ अली थानवी साहब को भी लेते आइए, लेकिन अफसोस के भाई उस अकीदे के मुताबिक मरकर मिट्टी में मिल गए हैं, वो तो आ नहीं पाएंगे। हेलो, जमाते देवबंद के अकीदे के नजदीक अब तो वो तो मर के मिट्टी में मिल गए, तो वो तो आ नहीं सकते हैं। ये तो मैं कहता हूँ कि अगर हो सके तो वो अशरफ अली थानवी साहब को मिला, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, मैं कैसे बोल सकता हूँ? नहीं भाई, आपकी जमात का अकीदा है, चूंकि तक़वियतुल ईमान में आपके इस्माइल दहलवी साहब लिखते हैं कि नबी फरमाते हैं कि मैं भी एक दिन मरकर मिट्टी में मिल जाऊंगा। तो भाई जब आप क्या, भाई सुनिए, जब आपके मसलक के उलमा ये कहते हैं कि नबी मरकर मिट्टी में मिल गए, तो एक आलिम की क्या हैसियत? अशरफ अली थानवी तो नबी नहीं है, वो तो जाहिर सी बात है कि जब आपके यहाँ नबी मरकर मिट्टी में मिल जाता है तो अशरफ अली थानवी साहब की क्या हकीकत है? वो भी मर के मिट्टी में मिल गए होंगे। हजरत मेरी बात सुनो, सामने वाले जिनसे आप बात कर रहे हैं जी जी, वो मतलब फर्क नहीं, मैं बारहा कर चुका हूँ। नहीं मैं भाई बात मसलक ही की हो रही है। आप देखिए कहीं ना कहीं, आप देखिए ऐसा है ना, आप कहीं ना कहीं मसलक हो रही है, जो ये साथी है ना, इन लोग के देखिए ऐसा है ना, राशिद जट्टारी साहब, मसलक किसे कहते हैं पहले आप जान लीजिए। आप गैरुल्लाह से मदद मांगने के कायल नहीं हैं, मैं गैरुल्लाह से मदद मांगने का कायल हूं। अब यहाँ मसलक बन गया, मेरा मसलक अलग हो गया, आपका मसलक अलग हो गया। आप गैरुल्लाह से मदद न मांगने की दलील देंगे, मैं गैरुल्लाह से मदद मांगने की दलील दूंगा, तो अब दोनों लोग अपने अपने दावे पे दलील देंगे, तो इसी को तो मुनाजरा कहते हैं। और जाहिर सी बात है कि दोनों लोग का मसलक तो अलग हो ही गया ना भाई। मसलक कहते किसको है? आप, ये बात यहाँ मसलक ही की हो रही है, आप इसको कह रहे हैं कि मैं मसलक से अलग कर रहा हूँ। ये मसलक से अलग बात नहीं हो रही है राशिद जट्टारी साहब। नहीं देखिए, नहीं, हर बात में मत करिए, पहले इसको समझिए कि आप कह क्या रहे हैं। और आप किसी जो है ना, हेलो जी, हाँ, पहले आप इसको समझिए कि आप किसी आंडू भांडू से नहीं बात कर रहे हैं, एक बड़े जिम्मेदार आदमी से बात कर रहे हैं। आपसे पहली बार गुफ्तगू हो रही मेरी। जी, तो आप मेरे निजी अकायद से वाकिफ नहीं हैं। आपके निजी अकायद से वाकिफ? अच्छा, तो ये बताइए, हेलो, चलिए मैं निजी अकायद से अभी आपके निजी अकायद से अभी वाकफियत कर लूंगा। अभी पहली बात है कि भाई आप या तो आप ही बात कर लीजिए। हेलो, हाँ मैं बात रखता हूँ, मैं अपने बारे में बता दूं तब आपको आसानी होगी मुझे समझाने में। मैं ये कह रहा हूँ कि कुरान हदीस सुन्ना ही मेरी फौकियत है। कुरान हदीस सुन्नत, अच्छा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन्नत, अच्छा, हाँ, तो यही मेरी फौकियत है। क्योंकि अभी इजमा कयास गया बाहर, मेरा निजी मामला है, मेरी बात सुनो ना। तो आप पहले हदीस हैं, आप पहले हदीस हैं। सुनिए मेरी बात, पूरी बात सुने। मैं सुन लिया, तो मैं सुन लिया, मैं समझ भी गया कि आपका निजी मौक़िफ़ जो है वो कुरान हदीस और सुन्नत, ठीक है। हाँ, आगे सुने तो कुरान और हदीस और सुन्नत ये तीन चीजें जोड़ा दी है, जबकि हदीस क्या आप बताएं। मेरी फौकियत है, लेकिन मेरी बात सुने, कुरान हदीस सुनना ही मेरी फौकियत है, लेकिन क्योंकि मेरा उतना इल्म है नहीं, तो कुरान हदीस की बारीकियों को समझने के लिए मैं इमाम अबू हनीफा का एक्सप्लेनेशन को मानता हूँ। चलिए, आप यानी हनफी भी हैं? जी, हनफी, हाँ, देवबंदी लोग वैसे हनफी कहलाते हैं, मेरी बात ना, हनफी मसलक से हूँ। लेकिन अगर इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की भी अगर कोई बात कुरान हदीस और सुन्ना से
पकड़ा जाएगी तो मैं उनकी भी नहीं मानूंगा। चलिए, तो ये मेरा आप, हाँ तो ठीक है, या तो फिर आप अपने ही टाइप के किसी आलिम को ले आकर के बात कराइए, वरना जमाते देवबंद के आलिम को लाएंगे तब तो वो फंस जाएगा, आपके अकीदे पे वो बात नहीं कर पाएगा भाई। नहीं, ये मौजूद तय हो गया कि कुरान और हदीस की रोशनी में आप ये साबित कर दीजिए हाँ कि गैरुल्लाह से मदद मांगना जायज है। हाँ, तो पहले मैं उसका मौकिफ जानूंगा कि वो आप ही के अकीदे का है या देवबंद। देखिए बात अभी ये आपसे शरायत तय हो रही है, लेकिन जिससे मेरी बात होनी है, ठीक है ना, तो पहले मैं उसका अकीदा खंगालूंगा कि वो किस अकीदे का है, ठीक है ना, और वो मुझे खंगालने का तरीका मुझे मालूम है, मैं खंगाल लूंगा। ठीक है, ठीक है, हाँ वो मैं खंगाल लूंगा। अगर जमाते देवबंद के अकीदे का होगा, मैं अभी बता दे रहा हूं, तो उससे उसके लिए अकाबिर की बात में हुज्जत मानवा दूंगा और वो मान भी लेगा, समझ रहे हैं। चलिए आप, मैं डिप्यूट कर रहा हूँ ना, मैं डिप्यूट कर रहा हूँ कि देखिए नहीं आप फिर आपके करने, देखिए ऐसा है तो फिर आप अपने किसी मसलक के आलिम को लेकर के, ये जो आपके मौकिफ का वो मतलब आपके मौकिफ की मुहाफिजत करने वाला हो, आपके सुनिए आपके मौकिफ का जो मुहाफिज आलिम हो, आप उसको लेकर के फिर आइए, वरना अगर देवबंदी आलिम को लेकर के आएंगे तो फिर आप याद रखिए कि बुरी तरीके से फंस जाएंगे। ठीक है, तो उनसे आप खुद शरायत को ये लीजिएगा। हाँ तो ठीक है, हम उनसे शरायत, हाँ तो फिर आपसे अगर बात होगी, अगर आपसे बात होगी तो मैं आपका मौकिफ अभी आपका मौकिफ वाजे नहीं हुआ मुकम्मल, ठीक है ना, मैं आपसे जब बात करूंगा तो आपके मौकिफ को वाजे कर दूंगा। ऐसा करिएगा कि आप अपने आलिम को लेकर के आइएगा, मैं उनसे शरायत मुनाजरा तय कर लूंगा, ठीक है जी। हाँ बेहतर है, मैं उसी लेकिन मौजू रहेगा गैरुल्लाह से, देखिए मौजू यही रहेगा गैरुल्लाह से मदद मांगना कैसा है, ठीक है। हाँ ये फिर वो ये माँ फौकुल असबाब जोड़ दीजिए इसमें। माँ फौकुल असबाब से क्या कहना चाहते हैं, मतलब मैं नहीं समझा, जरा सा इसको वाजे करें। जैसे कि मेरी अहलिया है, मैं उनसे मांग लेता हूँ कि एक तो पानी लाओ। नहीं मैं नहीं, ये माँ फौकुल असबाब नहीं, मैं अब बता दूं आपको, ये फहसुल असबाब हुआ, क्योंकि वो जो देखिए जो मतलब जिंदा रहे और मुर्दा होकर के कब्र में चले गए, यानी इंतकाल कर गए और अपने कब्र में चले गए, तो उनसे मदद लेना कैसा है, इस पे बात होगी। आप जिस आलिम को लेकर के आएंगे देवबंद के आलिम से, तो मैं अब उनसे शरायत तय करूंगा भाई, सीधी सी बात है। जी। अब वो उनसे शरायत तय हो। अदनान साहब अभी मुझे बरेलवी की दावत दे रहे थे और मैंने उनको ये कहा कि अदनान साहब का दावा था कि ये जो आप गुमराह करते हैं, अदनान साहब से तो मौलाना साहब हाँ अभी तक ये खुद को देवबंदी भी एक्सेप्ट नहीं कर पाए हैं। ऐसा है ना, मैं इनको बहुत अच्छे से जानता हूं, इनकी मैंने रिकॉर्डिंग सुन ली है, समझ रहे हैं जी। और राहिल भाई से इन्होंने बात की है, मैंने तकरीबन 48 मिनट की रिकॉर्डिंग इनकी यूट्यूब पे मैंने सुन रखी है, समझ रहे हैं जी। और इन्होंने बीच ही में अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह भी कहा था, समझ रहे हैं। हाँ। और जब बात फंसी उन्हीं की किताब से, यही गैरुल्लाह के मौजू पे, समझ रहे हैं। मैं भी मौजूद हूँ हजरत, मैं मौजूद हूँ यहाँ। हाँ मैं आपको गवाह बना रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, मैं झूठ थोड़ी ना बोल रहा हूँ। नहीं, मैं बता रहा हूँ, सुनिए अदनान भाई, मैं बता रहा हूँ, आप सुन लीजिए थोड़ा सा। अदनान भाई, जब ये अशरफ अली थानवी को रहमतुल्लाह अलैह बोले जी, तो जाहिर सी बात है कि अशरफ अली थानवी को आप मुसलमान मान रहे हैं जी। और जब उसके बाद इनके सामने राहिल भाई ने वो हवाला रखा जो अशरफ अली थानवी के पीरो मुर्शिद हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की के हवाले से बात इमदादुल मुश्ताक में अशरफ अली थानवी ने नकल किया है कि मतलब मैंने हजरत, वो फकीर मरता नहीं है, एक जगह से दूसरी जगह इंतकाल यानी जगह बदल लेता है, और मैं हजरत के बारगाह से वही फायदा हासिल किया जो उनकी जिंदगी में हासिल किया करता था, ठीक है ना, वही फायदा हासिल किया जो उनकी जिंदगी में हासिल किया करता था। अब राहिल भाई ने इनको कहा कि अब अशरफ अली थानवी पे मुशरिक का फतवा लगा दीजिए, तो अब इन्होंने कहा कि मैं कोई मुफ्ती नहीं हूं, ठीक है ना, और अब मौलाना अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी को ये काफिर कहने के लिए मुफ्ती बन गए थे, इनकी तहकीक आ गई थी। राहिल भाई ने इमदादुल मुश्ताक का हवाला बनके इनके व्हाट्सएप पे भेज दिया, इन्होंने देखा नहीं, ताकि देख लूंगा तो जवाब नहीं दे पाऊंगा, और वहां पे हुक्म लगाने के लिए इनकी मुफ्तियत खत्म हो गई थी। मेरे बारे में बोल रहे हैं ना, हाँ मेरी बात सुने, मेरी बात सुने रजा साहब जी। कि जिस शख्स को मैंने स्टडी नहीं किया, ठीक है, तो स्टडी करने के लिए व्हाट्सएप पे भेजा था ना आपको राहिल खान ने।
वो हो सकता है, आप किताब में देखूंगा ना मैं। अरे चलिए, आपके 10 नहीं राशिद साहब, आपके 10 मिनट भी पूरे हो गए होंगे, आपके मुफ्ती साहब खाली हो गए होंगे। हाँ, आपने 10 मिनट कहा था और कॉल 21 मिनट चल गई है। मेरी बात सुने। नहीं तो आप ऐसा करें ना मुफ्ती साहब, भाई देखिए ऐसा है ना राशिद जटारी साहब, मेरे पास बहुत वक्त नहीं रहता, मैं किताबों के मुताले में जाता हूँ बहुत ज्यादा, समझे। जी। आप ऐसा करें कि तो मुफ्ती साहब को अभी थोड़े करना है, अभी तो सिर्फ टाइम मैं उनसे ले लूंगा, मैं टाइम बता दिया जाएगा। अच्छा, तो कॉल कर ले, लाइन पे ले ले, कौन सी दिक्कत है। उनकी ये हिदायत थी मेरे को कि आप पहले मुझसे बात करेंगे, फिर मैं कुछ बताऊंगा, फिर आप ये करेंगे। तो ठीक है, ऐसा है ना कि ये सारी चीजें सुन लीजिए, ये सारी शराइत उनके व्हाट्सएप, रुकिए अदनान भाई, ये सारी शराइत आप उनके व्हाट्सएप पे डाल दीजिए जो मैंने बोला है, ठीक है। ये सारी शराइत आप उनको, फिर एक बार ये भी आपने ये भी बोला ना, रिकॉर्डिंग मेरे पास थी, आपने ये भी बोला ना कि मैं उन्हीं से शराइत तय करूंगा। हाँ मैं उनसे शराइत करूंगा जो जमात, सुन लीजिए, मैं उनसे शराइत तय करूंगा कि आप भाई जमात देवबंद से हैं, ठीक है। और आपने भी इसको एक्सेप्ट किया कि जो मुफ्ती, क्या नाम बताया मुफ्ती का, फकीउद्दीन, मुफ्ती फकीउद्दीन साहब, तो वो जमात देवबंद के आलिम, इस बात का एतराफ आपने भी किया। तो मैं उनसे यही शराइत करूंगा कि भाई मैं बरेलवी हूं, आप देवबंदी हैं। ऐसा करेंगे कि भाई दोनों लोग अब जो है अपन अपन पहले शराइत तय कर ले, बात हो जाएगी, क्या दिक्कत है, कोई मसला नहीं है, ठीक है। वही चीज, जिस चीज पे कहीं ऐसा ना हो कि इस घर को आग लग गई। घर ने जिक्र किया तो मैं उसको भी क्लियर कर देता हूँ। राहिल साहब मौजू से हट गए थे, तो मैंने ये बोला कि आप, राहिल साहब मौजू से एकदम नहीं हटे थे, बल्कि आप सुनिए राशिद जट्टारी साहब, मैंने आपकी नहीं पहले सुन तो लीजिए, नहीं आप झूठ बोलेंगे तो मैं फिर आपको तंबी करूंगा। पहले तो मैंने मैं बता रहा हूँ, जो आपने पहली रिकॉर्डिंग सुनी थी राशिद जट्टारी साहब, जिसमें आपने गाली गलौज भी किया, मैंने वो भी सुना, ठीक है। उसको जाने दीजिए, वो सिचुएशन के क्या बोलते हैं, नहीं सिचुएशन में तो फिर आप क्या, अभी मेरा आपसे बात करने का बोला गलत लगा आपको? नहीं नहीं अच्छा लगा, अच्छा लगा, मुझे तो अच्छा लगा, लेकिन जो आपने राहिल साहब से गुफ्तगू की वो भी मैंने सुना, और बाद में जो आपने संजीदगी के साथ गुफ्तगू की वो भी मैंने सुना। और जब आप मौजू से राह फिरार हो गए और जब अशरफ अली थानवी को मुशरिक कहने की बारी आई और आप वहां से मुफ्तियत, आपने वहां पे मुफ्तियत की डिग्री को जो है मनसूख कर दिया, वो भी मैंने देखा, समझ रहे हैं। आपने मौलाना अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी को कहा कि मुसलमान, हाँ मैं दे रहा हूं, मैं मुझे बोल लूं, मैंने वो भी सुना कि मौलाना अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी को आपने कहा कि मुसलमान साबित कर दो, यानी आपने उनको काफिर समझा था। तो वहां पे आपकी मुफ्तियत की डिग्री जो है बिल्कुल वाज़ेह और आया थी। जब अशरफ अली थानवी पे खुद उसका फतवा लौट आया तो आपकी मुफ्तियत वहां मनसूख हो गई और आपने देवबंदियत को जो है लात मार दिया, आप देवबंदियत से बेजार हो गए। सामने वाला जो बात कर रहा है, तो मैं बोल करके खामोश हो जाऊंगा, आप डिस्टर्ब क्यों कर रहे हैं? यानी कि जो असल बात है वहां बोल करके आप टांग अड़ा रहे हैं। अरे भाई मुझे बोल लेने दीजिए, मैं बोल करके खामोश हो जाऊंगा। मैंने कहा ना कि आपने जब मौलाना अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी के हवाले से कहा कि उसको मुसलमान साबित कर दो, यानी आप मौलाना अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी को काफिर कह रहे थे, यानी वहां पे आपकी मुफ्तियत वाज़ेह थी, आया थी। जब अशरफ अली थानवी पे उसी का फतवा राहिल खान ने पलटा दिया, फिर दरमियान में आप बोल रहे हैं, जब मैं कह रहा हूं कि बोल करके खामोश हो जाऊंगा तो भाई का, जब अशरफ अली थानवी पे, सुन लीजिए, जब अशरफ अली थानवी पे खुद उसके मुशरिक होने का हुक्म लगा दिया राहिल खान ने, तो वहां पे आपकी मुफ्तियत जो है मनसूख हो गई। आप वहां पे अपनी मुफ्तियत को जो है खत्म कर दिया, और बल्कि जो आप देवबंद कहने आए थे अपने आप को और अशरफ अली थानवी को रहमतुल्लाह अलैह कह रहे थे, तो वहां पे आप मुशरिक कहने से जो है भागने लगे और देवबंदियत से जो है आप मतलब ऐसे लग रहे थे कि आप देवबंदी है ही नहीं। तुरंत आपने अहले हदीस को अपना जो है बहुत लंबा माखज बना लिया। हाँ चलिए बोल लीजिए, जितना 1.5 मिनट बोला बोल लीजिए आप भी। हाँ मैं ये कह रहा हूँ जी, ये राहिल साहब से भी यही बात हो रही थी मेरी जी, यही था गैरुल्लाह से मदद मांगना जायज है या नहीं, इसी बात पे बस हो रही थी। तो अचानक वो फिर मसलक पे आ जाते हैं, फिर हमारे मसलक के किसी आलिम के इबारात को जो है बेस बनाकर बोलने के काफिर बोलो। हम कहते हैं मौजू क्या है भाई, अब मौजू से क्यों भाग रहे हो? हमारा फिर ये तो यही तो है दिक्कत। भाई बोलिए मत, मैं इनके सवालों का जवाब दे रहा हूँ। नहीं सुने आप, मैं इनके सवालों का जवाब, आप बोलिए, आप राशिद जट्टारी साहब आप बोलिए, वक्त मत बर्बाद करिए, आपको खामोश रहेगा अदनान भाई, आप बोलिए। जी
तो मैंने ये कहा कि भाई यहाँ मौजू क्या है कि मौलाना अशरफ अली थानवी साहब को काफिर साबित करना मौजू है, या हमारा जो मौजू पहले से तय है कि गैरुल्लाह से मदद मांगना जायज है या नहीं जायज। तो आपको कुरान और हदीस की रोशनी में इसको साबित करना है, मुझे भी अपने कुरान और हदीस से दलाइल देना है। तो ये मौजू है ना। आप अशरफ अली थानवी को मौजू बना ले रहे हैं, फिर उनकी इबारत को व्हाट्सअप करना चाह रहे हैं। तो वो तो पहले डिसाइड कर लेना था ना कि अशरफ अली थानवी की इबारत के बेस पर वो मुशरिक है या काफिर है, तो आप उसको पहले मौजू बना लेते। मौजू तो ये था ना गैरुल्लाह से मदद मांगना, तो अशरफ अली थानवी से क्यों आ गए? यही इसी को ना मैंने ये कह दिया साहब कि देखो साहब, अगर अशरफ अली थानवी के अकायद कुरान और हदीस सुन्ना के अगर खिलाफ हैं तो वो काफिर। मैंने यहाँ तक बोल दिया, आप मेरी रिकॉर्डिंग को दोबारा सुन लीजिएगा। काफिर तो फिर क्या कि मैं व्हाट्सएप पढ़ रहा हूँ ना, मैं व्हाट्सएप पढ़ रहा हूँ ना, आप देखो पढ़े। अरे वो किताब में पढ़ूंगा, फिर समझूंगा, तो और उसके बाद फिर उनका क्या मतलब समझता था। आप भेज रहे हैं, आप उससे बुक भी रखते हैं, क्या रखते हैं, एडिटेड है, कंप्यूटराइज जमाना है, तो मैं आपका एक व्हाट्सएप पे फतवा दे दूं? मैं ये बोला था। उसके बाद बोला, फिर उसने ये कहा कि उस दिन तो बड़े मुसलमानों को आपने एक गलत बात बोल दिया, अहमद रजा खान साहब पे मैंने कुफर का फतवा नहीं लगा था उस पोस्ट पर। फिर बाद में मैंने एक अलग पोस्ट डाला था कि कोई किसी फर्द वाहिद को कैसे वली बोल सकता है। इसका मैं उनको काफिर नहीं बोला हूँ। हाँ, अलबत्ता जो मुसलमानों को मैंने कुछ वो मैंने बरेली हजरात जिनका लगा था कि ये कुरान और हदीस के खिलाफ इनका है, उनको मैं बोल रहा था कि जो कुरान का मुनकिर वो काफिर। तो इसको बेस बनाकर वो बोल रहे थे कि उस दिन तो बड़े मुसलमानों पर फतवा लगा रहे थे आप काफिर, और अभी जो है आपने अब अब्बाओं की बात आ गई तो आप जो मुकर रहे हो। तो मैंने तो कहा कि अगर उनका अकीदा कुरान और हदीस के खिलाफ था, सुन्नह के खिलाफ था, अशरफ अली थानवी का अकीदा, तो वो काफिर। इतनी से बात नहीं बनी, उनको तो भागना था मुनाजरे से, बस वाहवाही लूटना अपने लोगों में, यूट्यूब चैनल चलाना है। तो वो मेरे को गलत राह फरार इख्तियार कर रहा, अपने अब्बाओं की बात इतने बोल के कट कर दिए। सामने अगर आप देखो इनके अब्बाओं की बारी आई तो ये राह फरार इख्तियार कर रहे हैं। अब मैं बोलूं? से कौन हटा? अब मैं बोलूं? एक मिनट है बस। नहीं, 1 मिनट नहीं, आप 2 मिनट बोल लिए, मैं बिल्कुल खामोश था। हाँ बस बात पूरी हो जाती है। हाँ, तो 1 मिनट और बोलेंगे आप, 3 मिनट हो जाएगा। हाँ तो कम बोलिएगा, कम बोलिएगा। हाँ तो ये यही मसला था कि हटा उसने मौजू से, हटा उसने मौजू खड़ा से मदद मांगना जायज नाजायज उनको साबित करना था कुरान हदीस की रोशनी में, और मुझे साबित करना था अपना मौक़िफ़। लेकिन वो अशरफ अली थानवी से आ गए। मैंने 12 साल से मैंने इनको स्टडी नहीं किया है, तो फिर इसके भेजने वाली बात। तो मैं उस दिन उस वक्त तक अहमद रजा साहब को मैंने काफी नहीं बोला था। वो कुछ मुसलमान थे ऐसे जिनका मैं पाया था कुरान के आगे आयतों के खिलाफ अकीदा इनका, इसलिए उनको बोला। जो कलमा नहीं पड़ेगा बगैर मुफ्ती के मैं बोलूंगा कि वो काफिर है। नरेंद्र मोदी काफिर नहीं थे, इसलिए मुफ्तियों की सनद जरूरी है। चलिए, अब मैं बोलूं? ठीक है, अब आप शुरू करें। मैं बोलूं? अब खामोशी से सुनेंगे, मैं जैसे मैं इत्मीनान से सुना, उम्मीद करता हूँ। जी बोले आप। अदनान भाई, अदनान भाई, मैंने वो पूरी गुफ्तगू गालिबन 48 मिनट की है, मैंने सुनी है, ठीक है? जी मैंने भी सुनी है। इन्होंने अपना मकसद बनाया कि कुरान और हदीस की रोशनी में बात करेंगे, ठीक है? जी। और इन्होंने अपने आप को कहा मैं देवबंदी हूं, और अशरफ अली थानवी को इन्होंने रहमतुल्लाह अलैह भी 2 से 3 बार कहा है गालिबन, लेकिन रहमतुल्लाह अलैह कहा है, ठीक है? जी। 1 से ज्यादा मरतबा कहा है, ठीक है? जी। अच्छा, फिर इन्होंने एक बात भी कही कि अभी कुरान हदीस की रोशनी में बात होनी थी जब तक ये हमारे मसलक के उलमा की ये बात करने लगे। इन्होंने अभी दरमियान में कहा है, ये रिकॉर्डिंग को रिवर्स करके सुन सकते हैं। जी। तो यानी कि अशरफ अली थानवी जो है आलिम है और इनके उलमा है, तो अशरफ अली थानवी देवबंदी थे, तो अब ये देवबंदी हो चुके हैं, ठीक है? जी। अब कहने का मतलब है कि भाई आप इनसे पूछा, उन्होंने राहिल खान ने इनसे पूछा कि भाई ऐसा है कि वो क्या नाम है, गैरुल्लाह से मदद मांगने के बारे में आपका क्या ख्याल है? वो शख्स जो दुनिया से बज़ाहिर तशरीफ ले जा चुका है। तो इन्होंने कहा नहीं गलत है, वो मुशरिक हो जाएगा जो गैरुल्लाह से, ऐसे गैरुल्लाह से जो मदद मांगेगा, ठीक है? जी। तो उन्होंने कहा कि फिर ठीक है, अब आप चूंकि जमाते देवबंद से हैं, है ना, तो भाई जब जमाते देवबंद से हैं और वही बात जब आपके घर में पाई जाएगी कुरान और हदीस की रोशनी में, आपको साबित क्या करना है? जब हम साबित कर देंगे कि गैरुल्लाह से मदद मांगना बेहतर है, अगर मैं साबित कर दिया तो पता चलेगा कि आप भी अशरफ अली थानवी की तरह जो है वो आ जाएंगे कि भाई देखिए हमारे मौलाना ने भी तो यही कहा है जो आप कह रहे हैं, ठीक है? क्योंकि अशरफ अली थानवी ने खुद गैरुल्लाह से मदद मांगने को जायज कहा है, और वो बात पूरी लिखी है, 1 से नहीं 4-5 जगह पे, ठीक है? अदनान भाई,
जी 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 4-5 जगह पे इन्होंने गैरुल्लाह से मदद मांगना इन्होंने जायज लिखा है, ठीक है। जी जी मैंने पढ़ा है। अब वो गैरुल्लाह से मदद मांगना जायज, तो जब राहिल खान कुरान और हदीस से ये जब साबित कर देगा कि भाई देखिए गैरुल्लाह से मदद मांगना जायज है, ठीक है, तो अब इनकी होशियारी ये थी कि वे तुरंत कह देते कि अशरफ अली थानवी ने तो भी वही कहा है, तो वो बेहतर है भाई आपके हिसाब से कुरान और हदीस की रोशनी में है। एक बात, जी 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 इन्होंने अपना तो कोई धर्म बनाया ही नहीं है, जब देवबंदियत पे जो है आफत आती है तो तुरंत ये देवबंदियत को लात मार देते हैं। बस देवबंदी आलिम ही देवबंदी अकायद को डिफेंड कर सकता है, वो उनके लिए ऐसा है ना देवबंदी राशिद जट्टारी साहब, इसलिए गैरुल्लाह से मैं इन मदद कचरों से बचने के लिए कुरान हदीस जो आईना है नहीं मैं उसी को नहीं पेश बनाता नहीं हूं, नहीं बनाता हूं। अगर आप मैं ये तय देवबंदी हो गया था, कहेंगे माफक अपने से आप तय को, हो गया सुनिए था। राशिद साहब, राशिद जट्टारी साहब बीच में मत राहिल बोलिए, खान से भी पहले मेरा सुन माफक तय हो लीजिए। गया था, वो भागे बीच थे में फिर मौजूद थे। बोलने लगे आप, मतलब उसूल की खिलाफ वर्जी करते हैं, वादा खिलाफी करना ये अभी मुनाफिकत की मुनाजरा हो रहा अलामत है। था, अभी आपने बात मुझसे करनी कहा, है, अभी तो बात नहीं करनी थी, अभी तो वो अरे सेटल तो करना मैं था बोल रहा हूँ, कानून और मैं बोल रहा हूँ आपकी बारी में, मैंने बोला क्या, बोला क्या मैं आपकी बारी में? जब मैं बोल रहा हूँ आप बीच में बोल रहे हैं, आपने मुझसे इजाजत ली कि मैं ये बोलूं? लाहासिल टॉपिक है। नहीं नहीं, ये आप कोई बीच में मौजूद है, इजाजत, उसके आपने बाद वादा तो वो किया मुझसे अच्छा कि है। ठीक है आप बोलिए, ठीक है, तो अब आप जब मुझको बोलने दे रहे हैं, तो जब आपने ये वादा किया और वादा नहीं, की तो खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, तो ये आपका मुनाफिकत आपके की सवालों अलामत का है। आपको जवाब मालूम मैंने है? दे दिया। नहीं, आपको मालूम है इस बात को? पहले अब ऐसा कौन सी बात? करिएगा, सुनिए राशिद जट्टारी साहब, गैरुल्लाह के मौजू पे बात होगी, आप अपने उलमा से मुझसे बात कराइए, शरायत तय किए जाएंगे, कुरान और हदीस की रोशनी में बात होगी। और सुनिए, अगर इसके तहत आपके अकाबिर उलमा अगर जद में आएंगे तो फिर जमाते देवबंद का कोई भी आलिम होगा बचेगा नहीं भाई, साफ बात है। ठीक है, अगर उनकी बात अगर शरीयत और सुन्नत के खिलाफ पाई गई तो जो हुक्म गैरुल्लाह से मदद मांगने वाले पे लगेगा वही हुक्म उन पे लगा दीजिएगा, सीधा है एकदम। यही हमारा मौजू है, खल्लास, बात खत्म। वो बात वो हाँ ठीक है, हम अब उस आलिम से शरायत तय करेंगे जब आप आलिम है ही नहीं है, ठीक है, ऐसा है ना। अब ऐसा है आपके इल्म का अंदाजा हो गया। सुनिए राशिद जट्टारी साहब, मेरी बात सुन लीजिए, आपके इल्म का अंदाजा हो गया है, आप अपने आलिम से मेरी बात करा दीजिएगा, मैं शरायत तय कर लूंगा। आप जो है बिला वजह वक्त बर्बाद करेंगे, मैं वो तज़िये वक्त का कायल नहीं हूं, ठीक है, मैं किसी काम में हूं, मुताला वगैरह मुझे बहुत करना है, ठीक है। अदनान भाई का फोन काट दीजिए। हेल्प लेने के लिए आया था ना इनको। जी ये फोन करेंगे अभी हमको, तो हम आपकी बात करा देंगे। हाँ ठीक है, ठीक कल बात करेंगे, लेट भी काफी हो गया है। कल जो है दोपहर 12 बजे के बाद। जी 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 इंशाल्लाह इंशाल्लाह। वैसे कल आपको बरेली शरीफ भी जाना है ना? हाँ हाँ जी 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 चलिए ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। अदनान भाई कट गया उनका फोन। जी जी हम कट कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम।